Hi student, look, we have discussed our topic, it's our coordinate geometry, and in our last video we have discussed about what? Yeah, it's a section formula. Then after that we have discussed midpoint formula. Then we have do some problems based on our section formula as well as midpoint formula. Now in today's class again we are going to discuss base problem which are based on our section formula as well as midpoint formula. In today's class, in general, so whenever we have to find out any give, we have two endpoints and we have to coordinate of our the point which divided the given segment in a same ratio there, in its given ratio there, then it's easy to find out. But whenever we have a given coordinate of the point which divides any line segment, then we have to find out its ratio. Then today we are going to discuss some problems related with that. How can we find out the ratio of ratio divided by a point to any line segment there. Then look, first of all start with some basic question. What we have the question that find the coordinate of the point, find the coordinate of the points of trisection of the line segment joining the points. We have to find the points of trisection of the line segment joining the points 4, -1 and -2, -3. Look, we have end points 4, -1 and -2, -3. Find the coordinate of points of the line segment trisection. हमें trisection point निकालना बेटा. Then means trisect करा, मतलब we have 3 equal parts, 1 part 2 3. So suppose it's our Q and R. So then in this question we have to find out the coordinate of Q and coordinate of R. ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? We have to find out the coordinate of Q and coordinate of R. तो पॉइंट हमारे ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब इट्स वन पार्ट एंड वन पार्ट. वी हैव 3 पार्ट. तो अब देखते हैं हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है. आपके दिमाग में आएगा कि अरे रेशियो क्या है यहाँ पे? हाँ, बिकॉज वी हैव x1 y1, वी हैव x2 y2, देन रेशियो क्या है? तब तो Q कौन निकलेगा. तो जब Q की बात करेंगे, AQ is 1 part and QB is our 1 and 2 part. Now what is the ratio when we are going to find out the coordinate of Q? Then we have the ratio what? 1:2. Our point Q divides the line segment AB in the ratio 1:2. Now we are going to find out the coordinate of Q. Now coordinates of Q. Now we are going to measure coordinate of Q by using which formula? Yes, section formula. Now it's given by 1 into this. क्या था हमारा फॉर्मूला? What we have the formula? अगर हमें m इंस्ट्रूमेंट रेशियो है x1 y1 और x2 y2 हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट है, तो यस इट्स mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 कॉमा my2 n प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो ये m है, ये n है. तो mx2 मीन्स 1 into -2 प्लस क्या 2 into this 2 into 4 and sum of the ratio 1 plus 2 कॉमा अब y के साथ करेंगे 1 into -3 प्लस रिवर्स कर देंगे 2 into -1 upon 1 plus 2. Okay बेटा. Now look here what we have 1 into -2 we have -2, here we get plus 4 to 8 upon 3. Here we get -3, 2 into -1 -2 upon 3. Then the finally the coordinate of Q is given by 8 minus 2 6 by 3. We get 2 minus 3 minus 2 minus 5 by 3. Means what is our coordinate of Q? It is a 2 comma minus 5 by 3. 2 comma minus 5 by 3 बेटा क्या हमारा coordinate of Q है. अब in same manner we are going to find out coordinates of our R. अब R की बात करते हैं. R AQ 1 2 part and this is 1 part. अब R की बात करते हैं तो हमारे पास ये 2 part हुआ, ये हमारे पास 1 part है. 2:1. ठीक है बेटा. इट्स अब जो हमारा पॉइंट R है, जो पॉइंट R है उस AR की क्या है पार्ट? 2 पार्ट है, 1 पार्ट है, मतलब क्या हमारे पास रेशियो? इस 2:1 रेशियो है. देन अब हम 2:1 रेशियो कंसिडर करेंगे. अब हम इस पार्ट के हमें R की पॉइंट निकालनी है. देन 2 into
देन 2 इंटू दिस -2, ठीक है, प्लस रिवर्स करना है 1 इंटू 4 अपॉन सम ऑफ द रेशियो व्हाट वी हैव 2 + 1 नाउ, देन y वाले कोऑर्डिनेट के साथ 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1, then we have 2 into 2 -4 plus 4 upon 3 -6 -1 upon 3 is equal to 0 and -7/3. Now we get the coordinates of R. अभी हमारे पास coordinate of R है, coordinate of Q है, it's 0, -7/3 is the coordinate of R. फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को. Look, we have given a line segment AB having the coordinate is given by 4 and -1, -2, -3, and it's given that our line segment AB is trisected. Then we have to find the coordinate of the points which trisected the given line segment AB. Then to find out the coordinates of Q and R. Now, when we take the coordinate of Q, then we see that it's divide the line segment AB in the ratio 1:2. Then using section formula, we have the ratio of coordinate of Q is given by 2, -3. To get out the coordinate R, what we see that it's divide the line segment AB in the 2 part is to 1 part. Then we have to go to that. We are going to be use that. It's a M is our 2, N is our 1. Then we have the end point x1, y1 and x2, y2. Then we have solved. Then it's our what? We use our application of section formula there. Now look, we are going to take next question. Find the ratio in which the join of the points -3, 10. Find the ratio in which the join of the point -3, 10 and 6, -8 is divided by the point P -16. ठीक है बेटा. look, अभी क्या हो गया, till now we have find out the coordinate in which our given line segment is divided in the given ratio there, but in this case we have to find out the ratio in which this point or point P divided the line segment AB there. तो बेटा अभी हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है. लोग तो आपके दिमाग में आएगी चलो रेशियो m/n लेते हैं, पर बेटा जैसे ही हम रेशियो m/n लेके सॉल्व करेंगे देन इट्स टेक समथिंग लेंदी प्रोसेस. आपको लेके चलना पड़ेगा, फिर वो आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे या सब्स्टिट्यूट जो भी तरीके से आपको सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ m n and there. बट इस ऐसे किसी भी क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड कि जब भी हमको सॉल्व करना होगा हम सिंगल वेरिएबल के साथ करेंगे. Just we suppose that let the ratio be k/1. क्या लेंगे द रेशियो? We start with the ratio let k/1. तो हमारा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा और हम इजीली इसको क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे. ठीक, तो कैसे करेंगे, कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे, की वैल्यू कैसे करेंगे? तो पहले ऑब्वियसली सेक्शन फार्मूला हमारे पास रेशियो k/1 है, तो सेक्शन फार्मूला में हेल्प करती है कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे. ऑलरेडी इज गिवन इन द -1 and 6, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू k देयर. देन वी आर गोइंग टू यूजिंग आवर सेक्शन फार्मूला, using section formula or applying section formula here to get the coordinate of P. What we get? K into this 6, then we get 6k and 1 into -3 upon k plus 1. Okay बेटा. Then -8k plus 10. ठीक, आप क्या करिए, पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लीजिए. बट लुक अभी क्या है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P दे रखा है. द एक्सिस ऑफ और पॉइंट ऑफ P इज -1 मींस ये आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए,
ये आपकी -1 के इक्वल होनी चाहिए और ये आपकी 6 के इक्वल। दोनों के साथ इक्वेट नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? किसी एक के साथ, ठीक है। बट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन व्हाट? वी हैव टू गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ P एज -1 6, बट points of P is -1 6, therefore हम -1 से इक्वेट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, 6k - 3k + 1 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, 6k - 3 इक्वल टू -k - 1, देन 7 के हो जाएगा, k को शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल टू 2, देन k इज इक्वल टू 2/7। then what is our ratio? The ratio it divides our line segment is what? 2:7, because we take k is to 7, k is to 1, and we get the ratio what? 2:7। तो बेटा हमारी क्या रेशियो है? जो हमारी रेशियो है, जो उसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, इट्स आवर 2:7। द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? द रेशियो इज व्हाट? 2:7। 2:7 के रेशियो में हमारी लाइन सेगमेंट P के जो P है उसको 2:7 पार्ट में उसको डिवाइड कर रही है। ओके बेटा, देन इट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम। प्लीज़ ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा, रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा आप NCERT से या अदर साइड बुक से। Now we are going to take next question. Determine the ratio in which the line. Now again we have to determine the ratio here, but it's a little bit of change in this question. Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9, 3x plus y minus 9 equal to 0. Here we have again given equation of line there. Divide the line segment joining the point 1 3 and 2 7. 1 3 and B is what? 2 7। अब लुक, ये लाइन डिवाइड कर रही है, या क्यू पे कर रही है, तो हमें जिससे और लाइन 3x plus y minus 9, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल, सॉरी वी हैव डिटरमाइन द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 and 2 7। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं इसको। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? नाउ हाउ कैन वी सॉल्व द सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम? अगेन इट्स आवर एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किसका? सेक्शन फार्मूला। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें इट्स बेस्ड ऑन आवर सेक्शन फार्मूला एज वेल एज ऑन मिड पॉइंट फार्मूला देयर। तो हम उसकी डिस्कशन की बात करें बेटा। देन क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला कि जो सपोज कि हमने जो रेशियो, अगेन यहाँ पर रेशियो गिवन नहीं है, तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने डिस्कस किया कि द रेशियो इज गिवन बाय व्हाट? लेट क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो k is to 1। क्या स्टार्ट करेंगे? लेट क्यू डिवाइड्स AB इन द रेशियो k is to 1। अब उसने k is to 1 में डिवाइड किया, ठीक है बेटा, सही है। अब हमने k is to 1 रेशियो में, तो हम क्या करेंगे? अब व्हाट वी डू, या हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी हैव? द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज गिवन बाय k into 2, 2k 1 into 1 plus 1 upon k plus 1, then 7 into k 7k 1 into 3 plus 3 upon k plus 1। ठीक है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया किसका? q का। अभी हमारे पास q का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। नाउ वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ q। अभी q कहाँ लाई कर रहा है? q आपका लाइन सेगमेंट AB टू भी लाई कर रहा है, एज वेल एज वो लाई कर रहा है लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0। Since our q lies on the line 3x plus y minus 9 equal to 0, then ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। Since q lies on the line 3x plus y minus 9 equal to 0, then what we have?
ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे ये पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ पे 7k + 3 अपॉन k + 1 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, देन 3 इंटू 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y 7k + 3 अपॉन k + 1 माइनस 9 = 0। ठीक है, k + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को। देन व्हाट वी हैव हियर, वी हैव 3 to 6 6k + 3, इधर क्या होगा हमारे पास 7k + 3, सबको k + 1 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस k माइनस 9 = 0। 6k 7k 9k 6 7 13 13 माइनस 30 माइनस 9, व्हाट वी हैव, वी हैव 4k हियर। 3 + 6 minus 10 minus 3, 4k = 3, then k = 3/4, then what is the ratio, we have 3:4. Q divides the line segment AB in the ratio 3:4, ये 3:4 में डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट AB को। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन था कि अभी तो हमारे पास कोई पॉइंट कर रही थी, कोई पॉइंट डिवाइड कर रही थी। इधर क्या है हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट में क्या कर रहा है, हमारी एक लाइन है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लो चलो हमने ये पॉइंट लिखा, ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 3 and 2 7 है, और द लाइन 3x + y - 9 ए बी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो रेशियो वो क्या है, k:1 है। Then we first of all using section formula we are going to find out the what coordinate of q. Using section formula हमें coordinate of q मिल गया, but our q is lying on the line 3x + y - 9 = 0। अगर हमारा q उस लाइन पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेंगे q के पॉइंट, तो हमने q के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट थे वो लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 3:4। ठीक है, तो बेटा ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को क्या करेंगे आप रिवाइज करेंगे घर पे। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड हमने एक बात की थी कोलिनियरिटी की, वी हैव डिस्कस दैट कि डिस्टेंस फार्मूला से हम किसी 3 पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर दिखाएंगे। नाउ वी हैव वन ऑफ द क्वेश्चन राइजेस दैट क्या हम सेक्शन फार्मूला यूज करके भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखा सकते हैं? सोचो, हम बताओ। If we are here to able to show that the given 3 points are collinear by using section formula, yes or no? What will be the answer there? क्या आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे गिवन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है? Yes, answer will be yes. By using section formula we are able to show that the given 3 points are collinear. ठीक है, just कैसे? Just suppose we have a 3 point A, B, C as. So suppose we have point A is 1 1, B is -3, we have just take 3 - 2, 3 - 2, and 1 is what? C is what? 1 - 4. Look, we have a 3 point here. A, B, C. A is 1 1, B is 3 - 2, and C is -1 4. -1, C is -1 and 4. C is -1 and 4. We have to show that the given 3 points are collinear to each other. We have given that 3 points are collinear to each other. ठीक है बेटा, कैसे दिखाएंगे कि कोलिनियर है? जब सपोज कि हमारी ए पॉइंट है वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट बी सी को। ठीक है, ये हमारी ए है 1 1, जो लाइन सेगमेंट बी सी को 3, -2 एंड C -1, 4 को ये डिवाइड कर रही किसी गिवन रेशियो में। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए हमारी किसी लाइन सेगमेंट बी सी को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड कर रही है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? Yes, then by using section formula we can find out the coordinate of point A. Then we are going to find out using section formula. We are going to find out the coordinate of A there. Coordinates of A. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे कि जो पॉइंट A है इट्स डिवाइड द आवर लाइन सेगमेंट इन द रेशियो k:1, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो ही हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
हमने रेशियो क्या ले लिया, k:1 ले लिया, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द व्हाट क्वांटिटी ऑफ a देयर, k into -1 minus k into -1 minus k 1 into 3 upon k plus 1। दूसरा पॉइंट क्या होगा, k into 4 we get 4k and 1 into -2 upon k plus 1, ठीक है। लुक, हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, जस्ट सपोज हमने स्टार्ट किया कि a इस bc को डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में। अब लोग अगर ये कोऑर्डिनेट ऑफ a ही है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या करते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट तो ये चीज़ हमारी वैल्यू जो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ a निकाले हैं वो वैल्यू हमारी दोनों 1 और a को हमने क्या लिया है, 1 and 1 लिया है, तो ये भी 1 के बराबर होना चाहिए, ये भी 1 के बराबर होना चाहिए। और दोनों केसेस में जो हमारी k की वैल्यू अगर सेम आ गई, हमने इसको भी 1 के इक्वेट करें और इसको भी 1 के इक्वेट करें और k की वैल्यू सेम मिल गई, मीन्स वी कैन से दैट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए चेक करते हैं। नाउ -k + 3 अपॉन k + 1 इक्वल टू 1, यहाँ से हमें सॉल्व क्या मिलेगा, -k + 3 इक्वल टू k + 1, देन वी गेट 2k, इसको शिफ्ट किया, सो 2k इज इक्वल टू 2, देन फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, 1। हमें k की वैल्यू 1 मिल गई। अब यही काम करते हैं इसके साथ। नाउ अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ a डिनोट करता है, देन 4k - 2 अपॉन k + 1 भी क्या होना चाहिए, इस 1 के बराबर, देन 4k - 2 इक्वल टू k + 1, देन वी हैव 3k इक्वल टू 3, देन वी हैव k इक्वल टू 1। देखा, इट्स अ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ मैजिक है। हमने पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाया, किसके साथ, डिस्टेंस फार्मूला के साथ दिखाया। अभी हमने क्या दिखाया कि बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी आर आल्सो एबल टू शो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। क्या किया, सपोज किया कि हमारा a पॉइंट 1 1 है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है रेशियो k:1 में। हमने क्या किया, हमने निकाल दिया क्या, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ a निकाल दिया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या है, मस्ट बी कोइंसाइड विद दिस 1 and 1, अगर कोइंसाइड करेगा देन वी हैव द सेम द वैल्यू ऑफ k इज देयर, ऑब्वियस है कि रेशियो तो हमें सेम मिलनी चाहिए, सेम पॉइंट हो, देन वी गेट द रेशियो इज 1:1 इन बोथ केसेस, मींस द पॉइंट्स आवर द 3 पॉइंट्स आवर a b c, then we can say that our a b and c are co-linear। ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा, कोलिनियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आप क्लास 9 में जाएं, दिखाएं, मैंने बोला कि भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैजिक्स है, कहीं भी अप्लाई ज्योमेट्री पार्ट है तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। आपको 9 की थ्योरम याद है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होती है तो हम बोलते हैं कि अगर हाइपोटेनस पे कोई मिड पॉइंट ले, जो हमारी तो बताते हाइपोटेनस पे कोई पॉइंट ले तो दिखाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पे कोई पॉइंट लेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है तीनों वर्टेक्स से। क्या आ रहा है उसके साथ रिलेशनशिप, क्या होती है, तीनों वर्टेक्स से क्या होती है बेटा, सेम डिस्टेंस पे होती है। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यस, हम ज्योमेट्रीज पे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के एप्लीकेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं वो, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज गिवन, और राइट एंगल ट्रायंगल जस्ट सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल AOB। हमने ट्रायंगल को इस तरह से लिया कि वो हमारी ओरिजिन है, ठीक है। कैसे ले रहे हैं देखो ध्यान से, फिगर में थोड़ा सा पॉइंट ज्योमेट्री। तो हमने AOB हमारी ट्रायंगल है, हमने उसको ऐसे लिया कि हमारे जो OA है वो y एक्सिस पे और OB हमारा किस पर है, x एक्सिस पे, ठीक है। और हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल लिया, वी हैव वेयर टेक C इज अ मिड पॉइंट, C इज आवर मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB, देन वी हैव टू शो दैट दिस C इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम OA एंड B। क्या हमें शो करना, ये था हमारा ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट कि ये इक्विडिस्टेंस पे होगा किससे, O से भी, A से भी और B से भी। मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिखाना है बेटा, वी हैव टू शो दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू व्हाट, किसको दिखा दे, AB AC किसको, OA। हमें क्या दिखा देना है कि सॉरी ये पॉइंट दिखाना है तो हमें OA नहीं चाहिए, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इट्स अ क्या दिखा दें OC
ए सी एंड बी सी। अगर हम ये दिखा देते हैं कि आवर डिस्टेंस ओ सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, मीन्स हमारा जो सी है, जो हाइपोटेन्यूस का पॉइंट है, वो हमारा क्या है, वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो चलिए कैसे करें, इसके लिए क्या पहले हमें कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। जब सपोज कि हम ये लेंथ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ये हमारा जो बी का कोऑर्डिनेट है, वाई का पॉइंट 0 होगा, वो 2a0 ले लिया, और इधर क्या ले लिया 0,2b। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट लिया। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या अप्लाई करें, सी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट आपका 2a + 0/2 2b + 0/2, देन वी गेट a एंड b। अभी लुक बेटा, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल गया, a और b आप डिफरेंट पॉइंट भी लेके दिखा सकते थे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट कर सकते थे। नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ सी हियर, अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी है। ठीक है, नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी है बेटा। ठीक, अब इनको इक्वी डिस्टेंस दिखाना है तो क्या करेंगे, पहले OC निकाल लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड OC। OC, O हमारी ओरिजिन है 0 0, a - 0 होल स्क्वायर प्लस b - 0 होल स्क्वायर, देन व्हाट वी गेट, वी गेट √a² प्लस b²। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ AC। a - 0 होल स्क्वायर प्लस b - 2b होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, हियर वी गेट a², हियर वी गेट -b² इज व्हाट b²। ठीक है बेटा, AC भी हमारी √a² b² मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट BC। BC 2a - a होल स्क्वायर प्लस 0 - b होल स्क्वायर, देन व्हाट वी गेट, हियर वी गेट a² b²। लोग देखो, अभी हमने क्या दिखाया, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज करते हुए ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेनस का मिड पॉइंट लेंगे तो मिड पॉइंट हमारे वर्टेक्स से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है, इट्स अ इक्वी डिस्टेंस। तो सो दैट वी हैव टू शो दैट OC इक्वल टू AC इक्वल टू BC। बस ये था कि ज्योमेट्री यूज करने के लिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एक्सिस पे ट्राइंगल को ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल एक्सिस पे लिया, उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन ले लिया, B को मान लिया, B हमारी x एक्सिस पे थी, इसके कोऑर्डिनेट को 2a,0 लिया, OA हमारा y एक्सिस पे था, उसके कोऑर्डिनेट को 0,2b ले लिया। अब हमने पॉइंट C बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमने क्या किया, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमने C का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हमने कोऑर्डिनेट ऑफ C निकाला, व्हाट वी गेट a, b। अब हमें कोऑर्डिनेट मिल गया a, b। देन हमें लेंथ बतानी थी OC AC BC, क्योंकि वी हैव टू शो दैट आवर OC इक्वल टू AC इक्वल टू B, हमें ये शो करना था, तो हमने यहाँ दिखा दिया व्हाट इज शो दैट OC इक्वल टू AC इक्वल टू BC, दैट इज C इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O, A एंड B। ये हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया यहाँ पे। C के कोऑर्डिनेट AB मिल गया तो डिस्टेंस OC निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वैसे डिस्टेंस AC निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक, डिस्टेंस BC निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और ये तीनों कितने हैं बेटा, ऑल दीज आर इक्वल टू √a² प्लस b²। हमने क्या दिखा दिया, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने दिखा दिया कि ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या है, ठीक। और कई क्वेश्चंस पे आप एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री लगा सकते हो, जैसे कि अभी क्वेश्चन है, मैं उसको पूरा नहीं करने जाऊँगा, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप उसको घर पे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अगर चाहें तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं किस पे, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, prove that the diagonals of a rectangle bisect each other, and are of equal length। याद आ रही है 9th की ज्योमेट्री कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल लेंथ के भी होते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी बेटा आप प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ये आप घर पे करिएगा। आप एक वर्ड एक्सिस पे ही ले लीजिएगा, आप ओ पे ही आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे
ठीक है, क्या ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे ओ ए बी सी, ओ ए बी सी रेक्टेंगल होगा बेटा, आप उसको एक्सिस पे ले लीजिएगा। एक्सिस पे लेने के बाद आप इसके कोऑर्डिनेट पुट करिए, उसके बाद क्या दिखा दीजिए कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। देन ट्राई टू योर बाय योरसेल्फ, इफ यू आर फीलिंग any doubts on to doing this, then please ask me in our online classes whenever we have to meet with you. Then thanks to all.